everybody to Simplify MVT Academy. All the members of the audience who are attending today must be wondering, we specialized in the medical value travel industry. What are we doing in the cybercrime zone? And this question came to everybody's mind when we were formulating this event today. And I'm sure all of you in the audience must have experienced or come across somebody within your circle of friendship or family member who probably got into becoming a victim of cybercrime. And it's advancing so vast and in various different forms that it's become so difficult for us to identify how we get trapped into such a situation. So it becomes so important for us on behalf of the academy that such a huge challenge the community is facing, we need to raise awareness about it. So it's one of our social responsibilities towards the community to spread the knowledge and empower people to understand how does these cyber attacks happen. And also we need to equip ourselves in preventing, make ourselves aware of how can we avoid this, how can we prevent getting into a trap of becoming a victim of cyber attack. And it's a great privilege for Simplify MVT Academy as well as the Magnus Medi family that we have with us an eminent person who is the right person to give us the knowledge for all this, Mr. Parth Vaswani. He is the Vice President of Operations in the Digital Banking Division at Axis Bank. Could we have asked for more? Yes, he is much more than this. He is responsible for ensuring the robustness and security of digital platforms, optimizing operational processes, and implementing innovative technologies. So this is his day-to-day activity that he's involved in, where I'm sure he must have come across multiple practical situations that he will enrich us today. And he has more than 2 decades of experience in the retail banking sector. And he has been a pioneer, means he's been with the banks which has been pioneered in the industry, such as HDFC, ABN AMRO, Citibank. So you can imagine the wealth of knowledge he's coming with. Parth is a seasoned banker. He has expertise in driving digital transformations, and that's where cyber attack happens. So he's fully aware of all this. He handles operational efficiency and robust security frameworks. So he can give us complete details about how it happens. So in his long corporate stint, he's pivotal in designing controls and fortifying the bank's defense against cyber threats for his customers. So with this elaborate knowledge that he holds from the banking industry, and since most of the cyber attacks that many people have been facing has been fraud in terms of financial loss. So let us hear today the members of audience who have joined the webinar live. I'm sure you would like to keep your notes ready to write down all the tips and get to know more details. But the members of the audience who would watch it on our YouTube later, I highly recommend, please share this with all your friends and family members so that people get aware about how can we understand this and what are the measures to prevent this. So without much ado, let me welcome Mr. Parth Vaswani to take us through this robust knowledge. Parth, over to you. The screen is all yours. Thank you, Vidyaji, and thank you, Magnus Simplify MVT. This is एक्चुअली मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है कि अगर मैं किसी एक भी इंसान के लिए को मैं ये बता सकूं कि वो अपना पैसा, अपना रेपुटेशन कैसे बचा सकता है, तो ये फोरम बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और जो भी आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं उनके लिए भी ये एक थोड़े से छोटे छोटे टिप्स हैं जो हम शायद
भूल जाते हैं या फिर हमारे ध्यान उतर जाता है जब ऐसी कोई सिचुएशन हमारे साथ उभरती है। तो एक्चुअली बहुत लोगों ने ये सुना जरूर होगा कि फला फला लोगों का पैसा अकाउंट से निकल गया, बैंक अकाउंट खाली हो गया, किसी ने उनको लूट लिया। तो पहले जमाने में कुछ ऐसा हुआ करता था कि लोग चाकू छुरी लेके लूट लिया करते। अभी नया जमाना है, एआई का जमाना है, डिजिटल बैंकिंग हो चुकी है, ऑलमोस्ट सभी लोग डिजिटल आ गए हैं, हर एक के पास मोबाइल है। तो होता यह है कि छोटी छोटी चीजें जब हम डे टू डे अगर हम यूज करते हैं तो हम छोटी छोटी चीजें भूल भी जाते हैं। जैसे हमारी एक आदत हो जाती है कि हम जैसे ही ओटीपी आता है या इमीडिएटली भर देते हैं अपने ट्रांजैक्शन में, या बगैर कि ज्यादा ध्यान दिए कि हम किसको ट्रांसफर कर रहे हैं पैसा, हम कर देते हैं। तो ये तो चीजें होती है जिसमें हम ये बात मान सकते हैं कि इसमें हमारी गलती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता। हमारा कंट्रोल इसलिए नहीं होता क्योंकि हमें कुछ ऐसी चीजें बताई जाती है या हमें उस परिस्थिति में डाल दिया जाता है जिसमें से इंसान का उस समय सोचने का जो की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। तो मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ, जब भी मैं उनसे बात करता हूँ तो मैं उन्हें बताता हूँ कि आजकल क्या नई टेक्नोलॉजी आ रही है और उसमें हम क्या ना करें। इवन हमारे सुपरस्टार श्री अमिताभ बच्चन जी भी कई बार बोलते हैं कि आरबीआई कहता है आप किसी से अपना पिन ओटीपी शेयर मत करें और सावधान रहें। तो उसी एक कड़ी में मेरा भी एक छोटा सा योगदान समझ लीजिए इसको। और हम जब से बड़े हुए हैं, जब हम छोटे थे और जब से बड़े हुए तब या तो हमने किसी को कहा होगा या हमारे माँ बाप ने, हमारे नाना नानी, हमारा दादा दादी ने हमसे कहा होगा कि जब हम लोग बाहर जाते हैं तो हमसे कहते हैं कि किसी अपरिचित से कुछ भी खाना लेके खाना नहीं, उनसे ज्यादा बातें नहीं करना, उनसे बहुत घुल मिल नहीं जाना। तो उसके पीछे का रीजन ये नहीं था कि वो आपको एक्सप्लोर करने से रोकते थे, वो आपको नए दोस्त या नए परिचित लोगों से परिचित करने से रोकते थे। उनका मतलब ये था कि सिर्फ सावधान रहे। तो ये छोटी सी चीज जो हमें बचपन में सिखाई गई थी, आज शायद मैं वापस दोहरा रहा हूँ कि कोई भी अनजान व्यक्ति आपसे बात करता है तो ये इतना ध्यान रखिए कि आप अपनी कोई पर्सनल डिटेल्स उसके साथ शेयर नहीं करें। और जैसे बोला जाता था ना कि अगर कोई स्ट्रेंजर चॉकलेट देता है बच्चों को तो बच्चों को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फ्री की चॉकलेट एक्चुअल फ्री की चॉकलेट नहीं होती है। तो इसी तरीके से मैं अभी शुरू करता हूँ। जहाँ अगर आप में से किसी को लगे कि मेरी स्पीड कुछ ज़्यादा है तो आप सिग्नल दे सकते हैं, मैं उस स्लाइड पे वापस चला जाऊंगा। या फिर हम एंड में हम कुछ क्वेश्चन आंसर राउंड भी रखेंगे आपके कुछ। इसके अलावा भी अगर कुछ डाउट्स हैं थोड़े बैंकिंग को लेके या साइबर सिक्योरिटी को लेके, मोबाइल सिक्योरिटी को लेके, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आजकल आए दिन आप जब भी आप मोबाइल उठाएंगे या न्यूज़ पढ़ेंगे तो आपको ऐसी बहुत सारी न्यूज़ सुनाई देगी जिसमें से रैनसमवेयर में किसी ने करोड़ों गंवा दिए, कंपनी डूब गई क्योंकि उसका सिस्टम हैक हो गया, बहुत सारे लोगों के पैसे लेके कोई फ्रॉडस्टर चला गया। तो ये सारा आजकल नया नहीं है, लेकिन ये क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं हमने फ्रॉडस्टर को बैकडोर एंट्री दी है या हमारा सिस्टम कहीं ना कहीं इतना सक्षम नहीं है उसे रोकने के लिए, इसलिए ये सारी चीजें होती है। अगर आप आंकड़ों की माने तो आज साइबर क्राइम में महाराष्ट्र नंबर वन पे, इंडिया में महाराष्ट्र नंबर वन पे है। और उसमें से भी अगर ये मेरा डेटा नहीं है, ये कुकिल का डेटा है, मुंबई जो सिटी है वो सबसे ज्यादा रिस्क प्रोन सिटी है, क्योंकि ये फाइनेंशियल हब है। यहाँ हर तरीके की डीलिंग्स होती है, हर तरीके के ट्रांजैक्शंस होते हैं, करोड़ों का लेन देन करते हैं हम लोग। तो जितने ज़्यादा यूजर्स, जितनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन, उतना ज़्यादा वल्नरेबिलिटी होता है, और हम कितना भी करें कोई ना कोई इसका शिकार हो ही जाता है। बस हमारी एक कोशिश है कि हम जो आपको बता रहे हैं आप किसी न किसी और को भी शेयर करें। जितना ज़्यादा हम शेयर करेंगे,
लोग उतने जागरूक होंगे और उतना हम सेफ एनवायरनमेंट बना पाएंगे। जब किसी के साथ ऐसा कोई स्कैम होता है तो स्कैम सिर्फ पैसे का नहीं होता, तो इसमें लॉस सिर्फ पैसे का नहीं होता। कई बार इसमें जो लॉस होता है वो रेपुटेशनल भी होता है। वो सबसे बड़ी बात है कि हम इसको रोक तो रहे हैं, लेकिन क्या क्या बचाने की हम कोशिश कर रहे हैं और उसके उससे क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट केस है, ये एक रियल टाइम केस है। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि ये आजकल बहुत जोरों शोरों से है। आपको पता भी नहीं चलेगा, ये इतनी फास्ट, ये लोग स्कैमर्स इतनी फास्ट आप लोगों को इसमें लपेटे में ले लेते हैं कि आपको सोचने का, समझने का, किसी से बात करने का भी वक्त नहीं देते। तो ये केस है ऐसा कि आप, ऐसा हो सकता है कि आपको एक कॉल आएगा जिसमें आपको ये बोला जाएगा कि आपके नाम से एक पार्सल आया है, मैं फेडेक्स से बोल रहा हूँ, और इसमें ड्रग्स मिला है। अब ड्रग्स एक ऐसी चीज़ है जिसका नाम सुनते ही वैसे ही हम लोग थोड़े पीछे हट जाते हैं, और उसमें अगर हमारा नाम जुड़ जाए तो थोड़ा डर लगेगा ही, हम घबरा जाते हैं और हम पूछते हैं क्या हुआ। तो उसके बाद वो कॉलर जो है वो बोलता है कि मैं फलाना फलाना पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, आपका फेडेक्स का एक पार्सल आया है आपके नाम से, उसमें ड्रग्स है, और अभी आपके नाम से एक केस हो जाएगा, और हमको वेरीफाई करना है कि ये आपका ही है। तो आप जल्दी जल्दी हमें अपना डिटेल्स भेजिए, आईडी कार्ड कार्ड भेजिए, पैन कार्ड भेजिए, आधार नंबर भेजिए। और आपको सोचने समझने का मौका नहीं देते हैं, वो इतना फास्ट करते हैं, आपको इतना घबरा, अपना प्रेशर डालते हैं कि आपका, आपके ऊपर केस हो जाएगा, आपको जेल हो जाएगी, बस हमारे यहाँ से सीनियर्स निकलने ही वाले हैं, आपको अभी उठा लेंगे। तो एक नॉर्मल साधारण इंसान बहुत जल्दी डर जाता है और इसी का फायदा उठाते हैं। तो पहला हमारा, उनका जो टैक्ट होता है वो होता है किसी भी विक्टिम को डराना। और डराना सिर्फ ऐसे नहीं कि जैसे पहले चाकू छुरी होता था, यहाँ पे ये डराते हैं कि आपको जेल हो जाएगी, आपको सजा हो जाएगी। फिर वो कॉल कट हो जाएगा और इमिडिएटली कोई थोड़ी देर बाद फिर से एक कॉल आएगा और दूसरा आदमी आपसे बात करेगा। ये पूरा एक गैंग होता है, दूसरा आदमी आपसे बात करेगा और कहेगा कि अ, आपका ऐसा ऐसा केस चल रहा है, लेकिन मुझे शायद लग रहा है कि आप गुनहगार नहीं हो, तो आप घबराइए मत, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, आप जल्दी जल्दी आपके डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिए। जैसे ही आप उनको डॉक्यूमेंट भेजेंगे, फिर से एक फोन आएगा, वो बोलेगा ठीक है आपके डॉक्यूमेंट मिल गए हैं, लेकिन आप एक काम कीजिए, जस्ट आप हमारी श्योरिटी के लिए हम आपको एक लिंक भेजते हैं, आप यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, तो हमको ये एश्योर हो जाएगा कि जो नंबर पे हम कॉल कर रहे हैं वो आपका ही है, और हमको आपकी लोकेशन का कंफर्मेशन मिल जाएगा। अगर आपकी लोकेशन शेयर नहीं है तो आपको एक अलर्ट आएगा जिसमें आपको लोकेशन शेयर करने के लिए हमें परमिशन देनी पड़ेगी। ये सब चीज हो जाते जाने जाने तक उसके पीछे आपको बैकग्राउंड में कुछ अलग से नॉइज ऐसा भी सुनाई देगा, जहां ऐसा लगेगा कि कोई सीनियर इंस्पेक्टरों से बोल रहा है कि आप क्यों बात कर रहे हो, जल्दी जल्दी करो, वो भाग जाएगा, अब हम उसको उठा लेते हैं। ये एक प्रेशर टैक्टिक होता है। ये सब हो जाने के बाद फिर वो धीरे से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, ये बोल के कि आप घबराइए मत, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ, हमारे ऊपर प्रेशर है, ये ऐसा ड्रग्स इतना बड़ा कंसाइनमेंट आया है, आप रुक जाइए। 5-7 मिनट तक वो आपको यही समझाते रहेगा, ताकि आप, पहले तो आपको उसने डरा दिया, फिर आपको विश्वास में लेने की कोशिश कर लिया। जब उसे पता चल जाता है कि आप विश्वास में आ गए हो, तो वो क्या करेगा, 2 मिनट बाद फिर से कॉल करेगा और बोलेगा कि आप मेरे सीनियर से बात कीजिए, मैंने उनसे बात की है। उनका सीनियर आपको बोलेगा कि क्या कर सकते हैं आप बताइए। जनरली हमारी इंडियन टेंडेंसी यही होती है कि हम लोग जितना इस लफड़े से दूर रहे, इस परेशानी से दूर रहे, उतना अच्छा। और उसका फायदा उठाने के लिए ये यही बोल देते थे कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप, हम आपको एक जीपे नंबर देते हैं, आप वहाँ पे इतना पैसा भेज दीजिए, हम आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं। लेकिन आप अ, ध्यान रखिए कि आप किसी और से बात नहीं करें, क्योंकि ये मामला गड़बड़ हो सकता है। जिनको आप फोन करेंगे शायद उनको इस स्कैम में
इस आरोप में फंसा लेंगे। ये जब चीज चल रही होती है तो जो विक्टिम होता है उसके मन में बहुत सारी चीजें होती है। आपको भी अगर कोई फोन करे और बोले कि आपके नाम से ड्रग्स आया है, तो आप भी यही सोचेंगे कि भाई जितना जल्दी निकल जाए उतना अच्छा। ये होते होते आपको वो 3-4 बार बोलेगा कि ठीक है, हमने ये पैसा हमने इसको दे दिया, वो पैसा हमने उसको दे दिया। आप अगर उनसे बोलेंगे कि मुझे आपकी आईडी दिखाओ, तो आपको फेक आईडी भी आ जाएगी। आप अगर इंटरनेट पे सर्च करोगे तो ऐसी बहुत सारी फेक आईडीज पुलिस ऑफिसर के नाम से बनी हुई होगी। उसमें एक प्रॉपर फोटो होगा, उसमें उसकी वर्दी होगी, या वर्दी वाला एक आदमी आपके वीडियो पे आके आपसे ये बोलेगा कि इतना पैसा दे दो। तो आप यकीन कर लोगे कि कोई पुलिस वाला ही होगा, क्योंकि हमने वर्दी देख लिया। और उस समय वो हालत नहीं होती कि हम लोग इतना सोच सके, और आप पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। ये ट्रांसफर करते करते आपसे आपको पता भी नहीं चलता कि उन्होंने कब आपके फोन में से आपके कांटेक्ट भी ले लिए, आपके फोटोग्राफ्स भी ले लिए। ये है उनका दूसरा चरण। जब आपको वो स्कैम कर लेते हैं तो उस इंफॉर्मेशन को वो कैसे यूज करते हैं। ये जब मैं जैसे सारे कांटेक्ट मैसेज फोटोज वगैरह उनके पास आ गए, आपसे जैसे ही उन्होंने पूरा पैसा ले लिया, आपका फोन वो ब्लॉक कर देंगे। जब आप उस फोन पे कॉल करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब हुआ क्या, ऐसे में किसी और ऐसा इसका इनका एक और मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये किसी पेरेंट्स को फोन करेंगे आपके कांटेक्ट लिस्ट में से ही। जनरली किसी न किसी महिला या पुरुष का फोन उठाएंगे और उनको फोन करेंगे कि आपका आपके बेटे को हमने ड्रग्स केस में पकड़ा है। तो ये उनके और विक्टिम्स हो जाते हैं। कोई आपके यहाँ पे फोटो ऐसी मिल गई, किसी महिला की फोटो मिल गई, तो वो उसका नंबर भी निकालेंगे कि अच्छा, ये प्रोफाइल में ये नंबर के साथ में ये फोटो है, ये महिला की फोटो है। तो वो महिला की फोटो को वो मॉर्फ करते हैं, यानी डिजिटली उसको अल्टर करते हैं। उसमें चेहरा किसी और का, बॉडी किसी और की लगा के फिर उस महिला को भी वो ब्लैकमेल करेंगे। तो ऐसे करते करते ये एक चेन रिएक्शन हो जाता है। जब तक हम रिएक्ट करें तब तक बहुत सारे लोग इस झांसे में आ जाते हैं। अभी इसमें ऐसी आपको कुछ स्क्रीन दिखाई देगी जिसमें आपको बोलेगा कि आप हमको कैमरा का एक्सेस दो। आपको नहीं देना है। ऐसा आएगा कि आपका कांटेक्ट का हमको परमिशन दो। ऐसी आपको कोई स्क्रीन आ जाएगी, तो आपको नहीं देना है। हमको क्या करना है ऐसे केसेस में मैं आपको आगे बताता हूँ। लेकिन ये एक केस ऐसा है जिसमें आदमी बहुत जल्दी घबरा जाता है। जाहिर है, कोई भी एक शरीफ नॉर्मल सा इंसान जो होगा, जिसने कभी पुलिस से ज्यादा पाला जिसका पाला नहीं पड़ा होगा, या जिसको लॉ एंड ऑर्डर की बहुत फिक्र होगी, वो ये सारी चीजों से दूर ही रहना पसंद करता। इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि वो आपके यहाँ से किसी न किसी महिला का फोटो ले लेगा, उनको ऐसा ऐसे मैसेजेस भेजेगा। जनरली आप देखिए, ये नंबर जो होता है वो इंडियन नंबर नहीं होता है। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हो, ये एक पाकिस्तान का नंबर है। ये दूसरी स्क्रीनशॉट में आप जो देख रहे हो, ये वो आईडी है जो उन्होंने फर्स्ट विक्टिम से ली थी। इससे ये पता चलता है दूसरे विक्टिम को कि हाँ, कोई स्टोरी जो बनाई जाएगी वो एक जेन्युइन है, क्योंकि इनके पास डॉक्यूमेंट है। ये जो केस मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें इन महिलाओं को बोला गया था कि आपका ये जो साथी है, जिसका पैन कार्ड उन्होंने शेयर किया, कि उसने बहुत सारा लोन लिया है और अभी वो पेमेंट कर नहीं रहा है। तो देखिए, आप ऐसे हर एक बार एक नया सिनारियो बनाएंगे और हर एक बार एक नए विक्टिम को साथ में जोड़ते जाएंगे, और अब जिनसे पैसा मिल जाए वो उनका पैसा हो गया। ये उनका धंधा ही नहीं, एक बहुत बड़ा गिरोह है। सोची समझी साजिश होती है उनकी। उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि फोटो किसी और का होगा, यहाँ इन्होंने इन महिला को बोला कि मेरे लोन का पेमेंट करवा दो। उनको बहुत अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करते हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं। महिला होते हुए जनरली वो बहुत डर जाती हैं, और पीछा छुड़ाने के लिए ही सही वो अपने पैसे उनके साथ दे देते हैं, या जीपे करके या ट्रांसफर करके कहीं ना कहीं से वो लोग ले लेते हैं। तो इसमें ऐसा हो गया कि हमको जब पहली बार पिक्चर मिली, तो हम एज अ विक्टिम हम क्या सोचते हैं कि महिला का सर और धड़ दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, तो ये मॉर्फ किया हुआ होगा, एडिटेड है। लेकिन जब वो ब्लैक एंड व्हाइट
करके आपको भेजेंगे तो ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि वो असली तस्वीर है या नकली। तो ऐसे में महिला घबरा जाती है कि ये इंटरनेट पे वायरल कर देंगे, क्योंकि ये बोलते हैं कि इंटरनेट पे वायरल कर देंगे, आपको हम बदनाम कर देंगे, और हर एक किसी को अपना प्यारा होता है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि ये सिर्फ एक फाइनेंशियल लॉस नहीं है, ये एक रेपुटेशनल लॉस भी है। अगर किसी का ऐसा फोटो उसके फादर या उसकी मदर को भेजा जाए तो पेरेंट्स पे ही क्या बीतेगी। तो ऐसे केसेस में एक बेंगलोर का केस था जिसमें एक्चुअली एक लड़की जिसके साथ ये सब कुछ हुआ और उसने सुसाइड कमिट। तो ये कितना सीरियस है आप समझ सकते हैं। एक किसी लड़की की जान चली गई जिसमें उसका कोई गलती नहीं। इसमें पैसे भी गए होंगे। पैसे जाना एक ठीक है, हम बाद में कमा सकते हैं, जाने तो वो भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर चले गए तो एक बार इंसान बोलेगा कि हम कमा लेंगे, लेकिन अगर किसी की जान गई, किसी की रेपुटेशन गई, किसी की ऐसे पिक्चर्स इंटरनेट पे चले गए, तो ये बहुत अ, बहुत दुखद घटना होती है, और वो फैमिली को फेस करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो ऐसे केसेस में हम कैसे बचेंगे, हमें क्या करना चाहिए, हम आगे देखेंगे। ऐसे में मैं आपको एक और केस बताता हूँ जिसमें, जैसे मैंने आपको बताया कि वो किसी पेरेंट को फोन करेंगे और बोलेंगे कि आपका बेटा जो है वो ड्रग केस में पकड़ा गया है। अब इसका उनको पता कैसे चलता है? उसका पता भी हम ही लोगों से चलता है। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी शायद, अगर आप केस स्टडी करोगे, पढ़ोगे। हम क्या करते हैं, हम लोग कहीं ट्रैवल करते हैं तो हम सोशल मीडिया में डाल देते हैं, ट्रैवलिंग टू बेंगलोर, ट्रैवलिंग टू अंडमान, ट्रैवलिंग टू मॉरिशस, मालदीव्स। लेकिन कभी ये सोचा है कि उस जानकारी को जो जिसको हम अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं, क्या ये जानकारी कोई और किसी और तरीके से यूज कर सकता है? अभी इस केस में ये हुआ कि एक बेटा जो है वो ट्रैवल कर रहा है, फ्लाई कर रहा है, बेसिकली उसने फ्लाइट पकड़ ली, और थोड़े दिन बाद उसकी वापसी की हो रही है, उसने वापस सोशल मीडिया में डाला होगा कि ट्रैवलिंग बैक। उन्होंने वो टिकट्स के डिटेल्स कहीं से लिए, क्योंकि बहुत बार लोग ऐसे हाथ में बोर्डिंग पास ये वो लेके घूमते हैं और फोटो खिंचवा के सोशल मीडिया में डाल देते हैं। ये इन्फॉर्मेशन कितनी घातक हो सकती है मैं आपको अभी 2 मिनट में बता दूंगा। जब वो बेटा एक फ्लाइट में बैठ के वापस आ रहा है, उस समय उसकी माँ को फोन जाता है कि हमने आपके बेटे को एयरपोर्ट पे पकड़ लिया है, उसके पास में से बहुत सारी ड्रग्स मिली है। अब दूसरे कंट्री में है और ड्रग्स मिली है, बेटा अकेला, माँ अकेली। फिर से उनकी वही टैक्टिक शुरू होती है, ये बोल के कि आप हमें पैसा दो, नहीं तो उसको हम जेल में डाल देंगे, वगैरह वगैरह, वही से डराना, वही धमकाना। और इसमें क्या होता है, माँ को सिर्फ एक ही चीज सोचती है कि मुझे किसी तरीके से अपने बेटे को छुड़ाना है। माँ अगर ट्राई भी करेगी अपने बेटे का नंबर डायल करने को, तो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो फ्लाइट में है, उसका मोबाइल रीचेबल नहीं होगा। तो उस समय वो उसको बोलेंगे कि रुको, मैं आपको आपके लड़के से बात करवाता हूँ। अब ये जो बात होगी, उसमें आप ध्यान दीजिए कि उनका मोडस ऑपरेट नहीं है, उनका तरीका कैसे होता है। आपको पीछे से किसी के रोने की आवाज आ रही होगी जब वो आपसे बात कर रहे होंगे। जब बात कर रहे होंगे और रोने की आवाज आएगी, तो वो बोलेंगे आपके बेटे से बात कीजिए। जब वो, मैं उसको फोन दे रहा हूँ, जब वो फोन देंगे, तो जो आवाज आएगी वो आपको आपके बेटे की लगेगी, या आपके किसी रिलेटिव की लगेगी, या आपके डॉक्टर की लगेगी। वो जो आवाज है ना, वो एक एआई जनरेटेड वॉइस होता है। ये एक टूल है जिसमें आप थोड़ा सा किसी के आवाज का सैंपल डाल के पूरा सेंटेंस कुछ भी बनवा सकते हो। ऐसे कई एआई मार्केट में फ्री मिलते हैं, और फ्रॉडस्टर से बहुत अच्छे से यूज करना जानते हैं। आप वो आवाज सुनोगे, आप और घबरा जाओगे। घबरा जाने के बाद वही करोगे कि किसी न किसी तरीके से बेटे को वहां से निकालो। फिर वही होगा, आप पैसे ट्रांसफर कर देते हो, ये सोच के कि मैं बेटे को ट्रांसफर कर रही हूँ। लेकिन जब तक पैसा ट्रांसफर हो चुका होता है और वो कई जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एक अकाउंट में से दूसरे, दूसरे से तीसरे, ये पूरा चेन रिएक्शन होकर पैसा बाहर निकल जाता है। जब आप एक्चुअली बेटा फ्लाइट से उतरता है, तब माँ को पता चलता है कि ये केस था ही नहीं।
तो कई बार ऐसा होता है कि हम अपने ट्रैवल प्लान्स जब हम शेयर करते हैं हम किसी के साथ या हम सोशल मीडिया पे डालते हैं तो बहुत सावधानी से डालें कि हम क्या शेयर कर रहे हैं। खासकर मेट्रो लोकेशन पे इसका एक और अ, अ, क्या बोलना चाहिए कि इसका और एक नुकसान है। बहुत न्यूक्लियर फैमिलीज होती है और सारी फैमिली बोलती है कि हम अब्रॉड जा रहे हैं। उसमें अगर आप सोशल मीडिया पूरा पोस्ट देखोगे तो उसमें उनका एड्रेस कहीं ना कहीं मिल जाएगा, उनका फ्लैट नंबर मिल जाएगा, उनका सोसाइटी नंबर मिल जाएगा। और फिर जब वो बाहर होंगे, यहाँ से फ्रॉडस्टर अपना काम शुरू कर देगा। या तो अ, उनको बोलेगा कि हम आपके घर पे आए हैं और आप नहीं हो और आपके नाम से ऐसा आया है, वो ना वहां से वापस आके अपना काम करवा सकता है या पुलिस को कंप्लेन कर सकता है क्योंकि वो ऑलरेडी बाहर है। ऐसे करते करते इनका बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हम सोशल मीडिया में हम उनको खुद ही शेयर कर लेते हैं। तो इस केस में भी ऐसा ही हुआ कि जब पेमेंट ट्रांसफर हो गया, जब वापस उनको कॉल किया तो नंबर ब्लॉक बताया। इसमें जो भी हुआ, एक माँ को सिर्फ यही लगता है कि मेरा बेटा सही सलामत हो, और वो उस घबराहट में उस चिंता में कुछ और समझ में नहीं आता और वो पैसे ट्रांसफर कर देते। ये सिर्फ ऐसे लोगों के साथ नहीं है जिन्हें जानकारी नहीं है या जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है या जिनको सिस्टम की समझ नहीं है। अगर आप ये स्क्रीन देखेंगे तो इसमें कई पढ़े लिखे लोग भी इस फ्रॉड का शिकार होते हैं। कैसा फ्रॉड? किसी के साथ जॉब का ऑफर देते हैं और पैसे ऐंठ लेते हैं। देखिए यहाँ डॉक्टर हैं, इनसे 45 लैक्स ले लिए। या दूसरे डॉक्टर हैं जिनको ड्रग्स का केस करके अपनी इज्जत बचानी थी तो उन्होंने 5.8 लैक्स दे दिए। यहाँ पे डोमिनोज की फ्रेंचाइजी के नाम से लोगों को कहा गया कि हम आपको डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, हम आपको दिलाएंगे, और 20 लाख रुपए ले लिए। एक वुमेन, यानी इनको एक महिला को उन्होंने कहा कि आप इन्वेस्टमेंट करो, हम आपको अच्छा रिटर्न देंगे, ऐसा कह के उनसे 55 लाख रुपए ले लिए। तो ये एक सिर्फ इतने पे ही लिमिटेड नहीं है। कई सारे ऐसे फ्रॉड्स हैं जो अनडिटेक्टेड रहते हैं, जो रिपोर्ट नहीं होते हैं और हमारे कई हिस्सों को इफेक्ट करते हैं। किसी को इन्वेस्टमेंट के नाम से, किसी को अ, कानून के नाम से, और किसी को ये बोल के कि हम आपको एक रिफंड भेजेंगे। रिफंड भेजते समय वो कैशबैक है, आपने ये सामान लिया है, आपको 100% कैशबैक है बोल के आपसे आपको 400 की जगह वो 4000 भेज देंगे और फिर बाद में बोलेंगे कि आप वापस कर दो। जब आप उनको वापस करने जाओगे तो बोलेंगे मैडम आप ऐसे वापस मत करो, हमारा रिफंड ठीक से प्रोसेस नहीं होगा, मैं आपको क्यूआर देता हूँ, आप उस पर पैसे वापस दे दो। जब आप क्यूआर स्कैन करोगे तो आपका सारा बैंक अकाउंट डिटेल्स, आपका कॉन्टैक्ट्स, आपका फोन का डेटा सब वो ले लिया। तो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी भी है कई कई जगह, लेकिन उसी जगह जब तक हम सावधान नहीं है तब तक ये बहुत बुरी भी है। सावधानी हमारे हाथ में है। ये एक केस है जिसमें डॉक्टर को डेनमार्क के हॉस्पिटल में जॉब का ऑफर आया। डेनमार्क एक बहुत अच्छा कंट्री है जहाँ पे बहुत अच्छा पैसा मिलता है डॉक्टर्स को, नर्सिंग नर्सेस को। उसको लालच दिया गया कि वहाँ फ्री ट्रांसपोर्ट होगा, इंश्योरेंस, हाउसिंग वगैरह सब होगा। और बाद में उसे कहा गया कि आपके डॉक्यूमेंटेशन करने हैं तो आप मुझे 21,578 रुपये भेज दीजिए। डॉक्टर जॉब की लालच में भेज देता है। ये एक हो गई लालच। पहला था डर, दूसरी लालच। ये एक और केस है जिसमें एक महिला को इन्वेस्टमेंट के नाम पे पहले तो उन्होंने अच्छे पैसे दिए, कहा 10,000 डालो हम 20,000 देंगे, 20,000 डालो 40,000 देंगे। 3-4 बार तक वो पैसे देते गए और अचानक उनको कहा कि अगर आपको ज़्यादा कमाना है तो 1 करोड़ डालो, हम आपको 5 मल्टीपल फोल्ड्स में देंगे। ऐसा करते करते उन्होंने उससे 3.4 करोड़ इन्वेस्ट करवाए और बस उसके बाद वो नंबर बंद, कांटेक्ट बंद और चैनल भी बंद। आपको कई बार आता होगा कि ये वाला व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, ये वाला टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। तो प्लीज़ ज्वाइन मत कीजिए, इसमें बहुत सारे स्कैम्स चलते हैं। जब तक आपको उस ग्रुप के एक्चुअल आदमी की जानकारी नहीं है, जो एक्चुअल जिसको आप पहचानते नहीं हैं, तब तक आप ऐसे ग्रुप मत ज्वाइन कीजिए। इसमें 99.9% ग्रुप्स जो होते हैं वो फेक होते हैं।
वो सिर्फ स्कैम के लिए आते हैं। वहाँ आपको बहुत सारी चीजें दिखाई जाएगी कि देखो इसने 300 रुपये डाले, इसको 3000 मिले, उसको 400 रुपये डाले 4000 मिले। और लालच जो होती है ना, एक इंसान को सोच को बंद कर देती है। तो यहाँ पे भी एक्चुअली वो इसी का ये फायदा उठाते हैं। यहाँ एक आईटी इंजीनियर है, इसका केस बहुत इंटरेस्टिंग है। इसे पैसे तो ले लिए, यही बोल के कि आपके नाम से ड्रग्स आया है, लेकिन इसको डिजिटली अरेस्ट भी कर लिया। डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, ये एक नया चीज है। और डिजिटल अरेस्ट जब होता है इंसान, तो उसको कहीं जाने नहीं देते। उसको कहा जाता है कि आप आपके लैपटॉप के सामने, आपके मोबाइल के सामने बैठे रहो और वीडियो कॉल पे हमारे साथ रहो। ये वो कहा जाता है उनको कि हम आपका केस जब तक सॉल्व नहीं करते, तब तक आप पैसे तो भेज रहे हो, लेकिन तब तक आप हमारी आंखों से दूर मत जाना। अगर आप आंखों से दूर गए तो हम आपके लिए अरेस्ट वारंट निकाल के हम आपको इमीडिएटली गिरफ्तार कर देंगे। उस गिरफ्तारी से बचने के लिए वो उस कंप्यूटर के सामने, उस मॉनिटर के सामने, वीडियो के सामने वो बैठा रहता है। ना घर से बाहर जाता है, ना घर से में किसी को आने देने के लिए उनको बोला जाता है। उनको बहुत इंस्ट्रक्शंस होते हैं, आप फोन नहीं करोगे। और डर के मारे इंसान कर भी देता है। ये डिजिटल अरेस्ट में ऐसे कई केसेस हुए हैं जहाँ सिर्फ ये आईटी इंजीनियर नहीं, ऐसे कई लड़कियां लड़कियों को भी उन्होंने ऐसे किया है, जिनके मॉक फोटोज दिखा के कि ऐसा आपका फोटो है, आपका इस स्कैम में, आपका इस साइट पे आपका फोटो आया है, अभी आपकी अरेस्ट हो जाएगी, तो आप मत वहां से हिलो मत। इसे हर एक को अपनी इज्जत प्यारी होती है, तो वो मानते चले जाते हैं और वो उस दलदल में फंसते जाते हैं। पैसा निकलता जाता है, अपनी रेपुटेशन बचाने के चक्कर में वो काफी कुछ गंवा देते हैं। ऐसे छोटे छोटे और केसेस होते हैं। ये तो आजकल के जो ट्रेंडिंग केसेस थे वो मैंने आपको बताया। ये एक नया एक हमने कुछ दिन पहले ही देखा कि नरेंद्र मोदी जी का नाम भी वो छोड़ते नहीं, कि वो उनका नाम भी यूज करते हैं फ्रॉस्टर, ये बोल के कि बीजेपी जीत गई है तो 599 का रिचार्ज देगा। आप इस पे क्लिक कीजिए, जो ये जो लिंक आपको दिख रही है, ये लिंक पे अगर कोई क्लिक करता है तो इसमें एक ऐसा एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपके फोन में ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाता है और पूरा डेटा वो ट्रांसफर कर देता है, जो आप आपके साथ फ्रॉड कर रहे हो। तो ऐसी कोई भी अनजान लिंक जिसमें आपको ये पता चले कि ऐसा नहीं हो सकता, एक बार हमको लगता है ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन लालच है। 599 जाएगा तो क्या जाएगा, 599 ऐसा सोच के हम क्लिक करते हैं, लेकिन पैसा चला जाता है जो 599 से कहीं ज्यादा होता है। उसके अलावा हमारे कॉन्टेक्ट्स भी जाते हैं, उसके अलावा हमारे फोटोज भी जाते हैं, जो बहुत कीमती है। पैसा एक बार वापस आ जाएगा, ये सारी चीजें वापस नहीं आएगी। और ये दूसरे लोगों को भी इस सब में मुसीबत में डालने के लिए काफी होता है। तो कभी भी, जब भी आपके पास ऐसा कोई फोन कॉल आए कि आपका ड्रग्स का केस हो गया है, आपका पुलिस आपके पीछे पड़ गई है, या आपका आधार नंबर किसी मनी लॉन्ड्रिंग अकाउंट से जुड़ा हुआ है, कोई भी ऐसा केस जहां आपको पता है कि आपने ऐसा कभी किया नहीं, तो आपको घबराना नहीं। सबसे पहली चीज है, आप घबराएं मत। एकदम शांत रह के ये सोचें कि क्या ऐसा मैंने कभी किया है। पहली बात तो आपको यही आंसर आएगा कि नहीं, आपने कभी नहीं किया। इसी एक केस में आपको मैं ये भी बता सकता हूँ कि आपने एक मोबाइल लेने के लिए आपका आधार कार्ड दिया किसी एजेंट को। उस एजेंट ने बोला कि सर इसका एक और कॉपी चाहिए। आप भोलेपन में क्या करते हो, आप उसकी दो कॉपीज बना के साइन करके उसको दे देते हो। एक सिम तो वो आपको दे देता है, लेकिन वो दूसरी आईडी पे एक दूसरा सिम निकालता है। सिम आपके नाम से, सिम उसके पास है। वो सिम नंबर वो किसी अकाउंट के साथ लिंक करेगा और उस नंबर से किसी और को ऐसी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करेगा। जब तहकीकात होगी तो आपका नंबर सामने आएगा, या वो नंबर सामने आएगा जिसमें आपका नाम जुड़ा हुआ है। ऐसे में आप कैसे आपको कैसे पता चलेगा कि आपके नाम से कितने सिम अलॉटेड है? कभी आपने ये सोचा है कि आपके नाम से कितने सिम अलॉटेड है? क्या कोई और नंबर है जो आपके साथ, आपके नाम के साथ जुड़ा हुआ है? चेक कीजिएगा। मैं आपको एक साइट दूंगा जिसमें आप चेक कीजिएगा कि आप वो कैसे चेक कर सकते हैं
कितने सिम्स आपके नाम से हैं। जो भी सिम आपको आपके नाम से नहीं लगे, आप वहाँ उसी साइट पे सिलेक्ट करके आप उसको बंद करवा सकते हैं। तो ये आपकी सेफ्टी के लिए है, आप ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको वीडियो के अंत में आपको मैं वो लिंक ज़रूर दूंगा। अभी आपको मैं ये 3 एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। ये भी एक साइबर फ्रॉड के लिए बहुत जानी मानी टेक्निक है। आपको पहली नज़र में जब आपने देखा होगा तो आपको तीनों एक जैसी लगी होगी इस साइट, लेकिन ये एक्चुअल तीनों एक जैसी नहीं है। ये जो साइट है ये एक्चुअल साइट लग रही है। अगर आप नॉर्मल सिनेरियो में इसके ऊपर आपका माउस लेके जाएंगे तो आपको इसके ऊपर एक लिंक दिखेगी। आप अगर मेरी स्क्रीन पे नीचे देख सकते हो तो यहाँ नीचे में आपको एक लिंक आ रहा होगा, www.magnusmedi.com। अगर आप दूसरे लिंक पे क्लिक लेके आओगे कर्सर को, तो यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो MEDI जो है उसके बीच में जो लाइन है वो कट गई। ये एक टेक्निकल एरर नहीं है या ये फॉन्ट का एरर नहीं है, ये एक्चुअली एक फेक वेबसाइट है जिसके ऊपर ये ई एक फोटो की तरह चिपकाया हुआ है। अगर हम इस फोटो को किसी तरीके से निकाल पाए या अगर हमने देखा होगा तो इसके नीचे कोई और वेबसाइट होगी। अगर आप इसका लिंक देखोगे, मेरा कर्सर इस वेबसाइट के ऊपर है, लेकिन अगर आप इसकी लिंक देखोगे नीचे तो आपको दिखेगा कि magnusmodi.com है। लेकिन क्योंकि हम इतनी बार उस चीज को देखते हैं अपने लाइफ में, ऐसी कोई चीजें होती है हम इतनी बार देखते हैं कि हमको लगता है यही सही है, हम वो छोटी छोटी डिटेल्स देखना भूल जाते हैं। सेम यहाँ पे, ये मैग्नस है, यहाँ मैंगस है। ये फर्क अगर आप पहली बार देखोगे तो आपको नहीं दिखेगा। वैसे ही एक फ्रॉड है जो हमारे नज़र में आया था कुछ दिन पहले। किसी का कंपनी का नाम है सर कंटेजा प्लास्टिक प्लास्टिक। अब वो क्या करता है, वो हमेशा मेल डालता है बैंक को और बोलता है कि मेरे अकाउंट से फलाना फलाना अमाउंट फला फला अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। अब होता क्या है, ये तो इंटरनल बैंक और पार्टी के बीच की बात थी, लेकिन कहीं ना कहीं बैंक के किसी एम्प्लॉय ने जोर से कंफर्मेशन दे दिया उसके ऑफिसर को कि फलाना फलाना प्लास्टिक प्लास्टिक से मेल आ गया है, ये वो ट्रांसफर आप कर दो। लेकिन जब ट्रांसफर हो गया, कस्टमर आया चिल्लाते हुए कि मैंने ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया नहीं, और इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि प्लास्टिक और प्लास्टिक्स एक एस एडिशनल जोड़ा गया था उस पूरे यूआरएल में, और उस मेल के बेसिस पे बैंक ने उतना ट्रांजेक्शन कर दिया। फ्रॉडस्टर पैसे लेके भाग गया, बैंक को भी नुकसान, उसकी रेपुटेशन को भी नुकसान। तो जब हम किसी के साथ कोई इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ उसी के साथ शेयर कर रहे हैं। जनरली हमने बहुत बार देखा होगा कि हम ट्रेन में जाते हुए, बस में जाते हुए एक दूसरे से बात करते हैं और कई ऐसी इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं जो कोई तीसरा आदमी सुन रहा होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी ऐसी पर्सनल इंफॉर्मेशन, कोई भी ऐसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आप डिस्कस ना करें पब्लिक प्लेस पे। अगर आप पब्लिक प्लेस पे हैं और आपको किसी को कुछ बताना भी है तो इतना धीरे से बोलिए कि तीसरा आदमी ना सुन पाए, या फिर उसको बोलिए कि मैं आपको बाद में बताता हूँ। अगर वो बहुत इंसिस्ट भी कर रहा है, उसको समय देना भी, तो बोलिए कि मैं 5 मिनट बाद बताता हूँ। देख लीजिए कोई आसपास आपका कन्वर्जेशन सुन तो नहीं रहा है। ये भी एक छोटी सी चीज़ है जो हम बहुत जल्दी इग्नोर करते हैं। मुंबई में तो खासकर हम बहुत इग्नोर करते हैं क्योंकि यहाँ भीड़ ही इतनी है, कहाँ बात करेगा इंसान। लेकिन फिर भी ध्यान रखिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको बहुत काम आएगी। आप प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए कि कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिक में आप शेयर ना करें। जितना हो सके अपने घर की बात, अपने पर्सनल फाइनेंशियल्स, आपके कोई फंक्शन हो रहा है, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, ये सारी चीज़ें किसी ना किसी के लिए इंफॉर्मेशन है और वो उसको किस तरीके से यूज़ करेगा आप नहीं जानते। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी फ्रॉड होता है ना, उसमें आप देखोगे ये सारे फैक्टर्स जो हैं, इनमें से कोई ना कोई एक फैक्टर या मल्टीपल फैक्टर्स इनमें से वो ही यूज होता है। इसके अलावा
अगर आप इन चीज़ों पे काबू कर सकते हो, इन चीज़ों पे अगर आप कंट्रोल कर सकते हो, तो आपके लिए फ्रॉड, कोई आपको फ्रॉड करके जाए बहुत मुश्किल है। जैसे सेंस ऑफ पावरलेसनेस, जैसे उस माँ को फ्रॉडस्टर ने बताया कि आपके बेटे को हमने पकड़ लिया है ड्रग्स के साथ। माँ उस तक पहुंच नहीं सकती, बेटे बेटे से बात हो नहीं सकती, या वो बेटे की वो आवाज़ सुन के फिर से वही कि मैं वहां पहुंच नहीं सकती, मैं कुछ कर नहीं सकती। ये एक हेल्पलेसनेस है, एक पावरलेसनेस है कि हम कुछ नहीं कर सकते। ड्रग्स मिला है, आदमी डर गया है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, मेरा कैसे भी करके नाम निकल जाए। लोनलीनेस, जैसे वो बैंगलोर का एक किस्सा था, जैसे मैंने आपको बताया कि उसकी कुछ ऐसी तस्वीरें फ्रॉडस्टर ने बनाई और उसके पेरेंट्स को भेजी, जो कि उसकी गलती भी नहीं थी। लेकिन उस समय उसको, उस जब वो ब्लैकमेल हो रही थी, तब उसे, लड़की को ऐसा लगता है कि मैं अकेली हूँ, ऐसी चीज मैं किसी को बता नहीं सकती। तो आपके आसपास जो भी है, आपके बच्चे हैं, आपके बड़े हैं, अ, उन सबको बोलिए कि ऐसा कुछ चीज है, तो हम फैमिली है। अगर वो फैमिली है तो हम फैमिली हर चीज एक साथ बांट सकती है, एक दूसरे की मदद कर सकती है। अपने आप को अकेला न समझो। ऐसा कुछ होता है, इमीडिएटली वो बच्चे जो हैं बड़ों को बताएं, या किसी भी तरीके से उस चीज को कन्वे करें। आजकल बहुत तरीके हैं कन्वे करने का, मैसेज भेज सकते हैं, किसी और के थ्रू बता सकते हैं, लेकिन कन्वे करें। आप भी अपने बच्चों को ये कंफर्ट दीजिए कि अगर ऐसा कुछ होता है तो प्लीज वो आपसे बात करें। वो, उनको एक गिल्ट अपने अंदर नहीं रहना चाहिए। जब आपको ऐसा कुछ पावरलेसनेस लगे, आपको या आपके बच्चों को या आपके दोस्तों को, ऐसा आप उनको बोलिए कि ऐसा अगर जिस भी सिचुएशन में अगर आप हो जाते हो, कुछ भी हो जाए, कोई भी पुलिस को अथॉरिटी नहीं है कि वो आपको वीडियो कॉल करे। कोई भी, लॉ आपके साथ है। कोई आपको फोन करके ये नहीं बोलेगा कि हम आपको आ रहे हैं उठाने के लिए, आप नहीं तो हम, आप ये करो, आप वो करो। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो पुलिस ऑफिसर अगर घर पे आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा वो आपको फोन करके पुलिस स्टेशन बुला सकता है। अगर वो पुलिस स्टेशन नहीं बुला रहा है तो ये आपकी ड्यूटी बनती है, या आपके सेफ्टी के लिए, कि आप खुद एक पुलिस स्टेशन जो भी आप पास में है उसमें जाइए और बोलिए मुझे ऐसे ऐसे कॉल्स आ रहे हैं, उन्हें बताइए। या 1930 ये एक नंबर है जो साइबर क्राइम्स के लिए रिपोर्टिंग के लिए नंबर दिया गया है, 1930। प्लीज ये सर्कुलेट कीजिए, जिन जिसे भी ऐसी कुछ कॉल्स आ रही है, एसएमएस आ रही है, धमकियां आ रही है, वो इस नंबर पे फोन करके अपना कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। फिर होता है जैसे फियर ऑफ स्पीकिंग, अशेम, वही सिचुएशन जो उन बैंगलोर के केस में हुआ। फियर ऑफ मिसिंग आउट, कई लोगों को ऐसा लगता है, अरे जब वो ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट का, कि अरे देखो इसको 40,000 मिल गया, अरे उसने 3,000 भरा उसको 60,000 मिल गया। ये सारी चीजें जो होती है ना, एक स्टेज होती है, ये लोग अपने आप क्रिएट करते हैं। फिर जो उसमें एक एक्चुअल विक्टिम है, वो उसको लगता है कि यार सब लोगों को फायदा हो रहा है, मैं क्यों मिस हो रहा हूँ। उस चक्कर में वो पैसे इन्वेस्ट करता है, और बस जब वो पैसे इन्वेस्ट करेगा और उसके पैसे क्या, जैसे वो विक्रम बेताल में बोलते थे, तू बोला और मैं चला। तो वो पैसा भी वैसा ही है, जैसा ही आपके मन में वो, या जिस विक्टिम के मन में वो ग्रीड आई, बस उसका पैसा चला। ये भी ग्रीड जैसे वो डॉक्टर के केस में हुआ। तो अगर आप कहीं किसी भी केस में देखोगे ना, तो इनका कॉम्बिनेशन आपको दिखेगा ही। या तो एक होगा या दो होगा, या कॉम्बिनेशन होगा। इसके अलावा आपको कोई और चीज नहीं होगी जिसमें आपको लगे। एक छोटा सा एग्जांपल, बीच में आप में से भी किसी लोगों को, कई लोगों को आया होगा कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी रात को 9 बजे बंद हो जाएगी। भाई ऐसे कैसे बंद हो जाएगी? अब बंद हो जाएगी तो हम हम डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, हम उनको बोल सकते हैं क्या हो गया। वो आपको इतना प्रेशर करेंगे कि आप ये सिक्योरिटी डिपॉजिट डालो या ये बिल डालो, नहीं तो हम आपकी लाइट बंद कर देंगे। अब 9 बजे जनरली लाइट बंद होती है, तो इंसान ये सोचता है यार रात को तो लाइट बंद हो जाएगी, तो सोने को कैसे मिलेगा। उसी चक्कर में वही डर है, सोने को कैसे मिलेगा, पैसा भेज देते हैं। वो हजार हजार रुपए करके अगर वो 10 लोगों से भी लूट लेता है, तो उसके 10,000 बन गए। और ऐसा ये, वो कम से कम 100, 150, 200 लोगों पे ट्राई करेगा, उसमें से 10 लोग पैसा दे ही दे। उनमें से शायद आपका ही कोई परिचित हो, आपके घर में का ही कोई हो। तो ऐसा कोई सिचुएशन जहां अर्जेंसी हो, वो बोलेगा नहीं, अभी अभी अभी। जहां डर हो कि आपको ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, या आप इतना दे दो, हम आपको इतना दे देंगे, ग्रीड हो, ऐसी कोई भी सिचुएशन आपके इसमें आने, आप
को प्लीज आप काम रहिए। सोचिए कि जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो हम क्यों घबराएं। जहां हमने जॉब अप्लाई नहीं किया है वहां से कैसे मुझे जॉब ऑफर आ सकता है। अगर आया भी है तो पूरी तहकीकात करने के बाद ही कुछ कदम बढ़ाएं। उसमें भी हमेशा सोचिए कोई भी टॉफी फ्री नहीं होती, जैसा मैंने शुरुआत में बताया था। जॉब फ्री में कोई देता नहीं है, तो आपके पास वो क्यों आया। अगर आप क्वालिफाइड है, वो आपके पास आया भी है, तो वो आपको पैसा देना चाहिए, न कि आपको जॉब देने के लिए वो आपसे पैसा लेना चाहिए। छोटी चीजें हैं, लेकिन हम लालच में उस समय एब्सेंट माइंड होते हैं या किसी और चीज में होते हैं, या टाइम की कमी होती है, डेस्परेट होते हैं, तो हम लोग ऐसे मेजर्स कर देते हैं। तो आप ये जो आपके परिचित हैं, जो आपके आसपास हैं, उनको भी बताइए कि ये सारी चीजें अवॉइड करें। जैसे मैंने आपको पहले कहा, आपको डरना नहीं है। ये डरा डरा धमका के पैसे लेने की एक पुरानी टैक्ट है। आपको काम रहना है, एकदम शांत रहना है, सोचना है पहले कुछ भी करने के लिए। जैसे मैंने यहाँ कहा कि जो आपको हायर कर रहा है वो आपको पे करेगा, आपसे तो पैसे लेगा नहीं। तो आपको सोचना चाहिए कि वो क्यों पैसे ले रहा है। ये छोटी छोटी चीजें हैं। आपने जॉब अप्लाई किया है कि नहीं, या फिर जो ईमेल आईडी से आपको मेल आ रहा है, आप उसके ऊपर, जैसे मैंने आपको ईमेल आईडी दिखाई, आप उसके ऊपर पॉइंटर ले जाइए, क्लिक मत कीजिए। जब आप पॉइंटर ले जाएंगे तो आपका ब्राउजर आपको दिखाएगा कि उस पर कौन सी लिंक अटैच्ड है। और कई बार आपको ये दिखेगा कि आपकी लिंक जो है वो किसी और जगह जा रही है और नाम जो लिखा हुआ है वो कहीं और है। अगर ऐसा आपको कुछ लगता है तो आप सीधा वो मेल डिलीट कर दीजिए, खोलिए भी मत और फॉरवर्ड भी मत कीजिए। आप फॉरवर्ड करेंगे कोई और विक्टिम हो जाएगा, आप उसको खोलेंगे आप विक्टिम हो सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप उसको डिलीट कर दें, ट्रैश में से भी डिलीट कर दें, ताकि कोई ऐसा चांस ही नहीं रहे कि आप कोई गलत लिंक को क्लिक कर रहे हो। अगर वो सही लिंक कभी हुई भी तो आपको वापस भेज देगा, आपकी बातचीत आपको फोन करेगा और आपको बता देगा कि ये सही लिंक है, आपने, आप बता सकते हैं कि मैंने गलती से डिलीट कर दिया। लेकिन फिर भी बहुत सावधानी से, कोई भी मैसेज जिसमें लिंक हो, कोई भी ऐसे मेल जिसमें लिंक हो, जिसमें आपको बोला जाए कि आपका अकाउंट बंद होने वाला है, आप मुझे ये भेज दो, या आपका नया अकाउंट खुल गया है, आप इधर ट्रांसफर कर दो, ऐसी कोई भी चीज़ जो आपकी जानकारी में कभी है ही नहीं। ना बैंक, ना अथॉरिटीज, ना पुलिस ऐसा कोई काम नहीं करती है जिससे आपको घबराने की कोई जरूरत हो। हर एक चीज के लिए आपको टाइम दिया जाता है। तो ऐसा जो भी जल्दी जल्दी वाला काम है, आपका रेड अलर्ट वहीं पे हो जाना चाहिए, आपके माइंड में एकदम से ये आ जाना चाहिए, नहीं कुछ तो गड़बड़ है मामू, ये इतना कर रहा है, इसको ब्लॉक करो। उसको ब्लॉक कर देना है। आप पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया 1930 एक नंबर है। एक पोर्टल भी है जिसका नाम मैं आपको इस प्रेजेंटेशन में लास्ट में दे दूंगा, आप वहां पे जाके ऑनलाइन भी कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको कोई धमका रहा है, आपको कोई अ, कुछ ऐसे फोटोज भेज रहा है, ऑब्सीन फोटोज भेज रहा है, तो आप उनको सेव करके रखें। कई बार ऐसा होता है कि आपको फोटो आ जाती है और गुस्से गुस्से में वो जो फ्रॉडस्टर है वो फटाफट उसको ऑनलाइन ट्रांसफर कर देता है और वो अपलोड कर देता है। तो ऐसी कई वेबसाइट्स हैं, ऐसी कई हेल्पलाइंस हैं जो आपको हेल्प करेगी वो फोटोज को वहां से हटाने के लिए। उनका सबका स्क्रीनशॉट रखिए ताकि कल को कुछ प्रॉब्लम हो तो आपके पास सबूत हो। फेडेक्स का कोई भी एम्प्लॉय, कुरियर का कोई भी एम्प्लॉय आपको फोन करके नहीं बोलेगा कि आपके पास में ट्रक चला है। तो ये सब सारी चीजें नकली होती है। कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स हैं, जैसे मैंने कहा कि आप मैसेज को ठीक से देखिए, उनकी आइडेंटिटी पूछिए, उनको बोलिए पुलिस स्टेशन में मिलने के लिए। ऐसे कुछ टिप्स हैं जिनसे आप अपने आप को सेफ गार्ड कर सकते हैं। आपको जब भी कोई मैसेज आए तो आपको ऐसी जो फील्ड आती है, अलाउ वाइल यूजिंग, अलाउ वंस, डोंट अलाउ, तो आपको सिलेक्ट करना है डोंट अलाउ। ये एंड्रॉयड में भी होता है और आईओएस में भी होता है। अभी आपके लिए एक एक्सरसाइज है, जब ये वेबिनार खत्म होगा तो आप आपके फ़ोन में जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, ऐप्स में जाएंगे, और वहाँ देखेंगे आपकी जितनी ऐप्स उनमें किस किस ऐप को कैमरा का एक्सेस दिया है, किसको कॉन्टैक्ट का एक्सेस दिया है, और जिसको नहीं चाहिए उसको आप हटाएंगे। जितना ज़्यादा एक्सेस हटाएंगे, जितना ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड रखेंगे, उतना आपके लिए सेफ है। आपकी कुछ इंफॉर्मेशंस होती है जिसको हम इन 4 कैटेगरीज में हमेशा ध्यान में रखते हुए
उसको रखना चाहिए। जैसे आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, पासवर्ड है, ये बहुत ही हाईली क्वालिफाइड ये है, सॉरी, हाईली कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड है। तो इनको किसी और को नहीं बताना है, ये सिर्फ आपको बताना है, ठीक है। अभी होता यह है कि हम लोग मेडिकल रिकॉर्ड को या हम बैंक स्टेटमेंट को घर के किसी भी कोने में रख देते हैं। अब हमारे घर में, मैं ये नहीं कहता कि हर जगह ऐसे ही होता है, हमारे घर में कई बार ऐसा होता है कि उसको उठा के लोग रद्दी में कचरे में डाल देते हैं। वो कचरा जाता है मेन कचरे में, और वहां से जब किसी को वो हाथ में लगता है तो उसमें आपकी डिटेल होती है, आपका नाम, आपका अकाउंट नंबर, कौन सी बैंक में अकाउंट नंबर, अगर मास्क भी हो तो आपका बैंक का नाम आ जाता है। फिर वो आपको फोन करने शुरू हो जाते हैं कि सर मैं एचडीएफसी से बोल रहा हूँ, क्योंकि उनको पता है आपका एचडीएफसी में अकाउंट है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम खुद ही एक्चुअली लोगों को देते हैं, बट हम अनजाने में देते हैं। आगे से ध्यान रखिए कि ऐसी कोई भी चीज अगर आपके पास है और आपको डिस्कार्ड भी करनी है, तो उसको अच्छे से फाड़िए, इस तरीके से फाड़िए कि जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो विजिबल नहीं होनी चाहिए। फिर कुछ रेस्ट्रिक्टेड इंफॉर्मेशन है, जो आधार है, पैन है, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है। ये पहले तीन जो कैटेगरीज है, हाईली कॉन्फिडेंशियल, रेस्ट्रिक्टेड, इंटरनल, अगर मैं इंडिविजुअल आपके घर के हिसाब से सोचूं तो ये सिर्फ आपके घर वालों के लिए है, ये किसी और बाहर वालों के लिए नहीं है। और नीड टू नो बेसिस पे ये हर एक के लिए अवेलेबल नहीं होने चाहिए। हर चीज हर एक के लिए नहीं होती, हर इंफॉर्मेशन हर एक के लिए नहीं होती। सिर्फ पब्लिक इन्फॉर्मेशन आप किसी से भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई बोलता है कि आप घर में क्या डील करते हो, घर में शादी है, बजट है, मैंने घर में पैसा रखा हुआ है, फंक्शन करना है, ये सारी चीजें आप पब्लिक में डिस्कस मत कीजिए। जितना हो सके अपने आप को सेफ रखिए। अभी जैसे मैंने आपको पहले एक एक्सरसाइज बोली कि आप मोबाइल पे के ऐप में जाओगे और वहां से आप उनकी जो परमिशंस आपको लग रही है कि नहीं देनी चाहिए, वो आप आज ही उसको रिमूव करेंगे। दूसरा है आपके जितने भी ओल्ड पासवर्ड्स हैं, आज आप देखिए आपने लास्ट कब चेंज किया था, और ट्राई कीजिए कि हर 6 महीने में आप उसे ट्राई चेंज करें। और आप में से कई लोगों की ईमेल आईडी या फिर आपका पासवर्ड जो होगा ना, आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, जब हम ईमेल एड्रेस बनाते हैं तो लिखेंगे पार्थ वासवानी 1956। अब 1956 मेरा ईयर ऑफ बर्थ, या 21/12/56 ये भी हो सकता है। इसमें आप क्या कर रहे हो, आप अननोइंगली अपनी डेट ऑफ बर्थ दे रहे हो, जो कि एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए एक आइडेंटिफायर होता है। आप कभी भी कॉल सेंटर पे फोन करते हो तो आपको पूछते हैं सर आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो आपका ईयर तो वहां से मिल गया। अब मैं आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे चला गया, जब मैं सोशल मीडिया अकाउंट पे गया तो आपने बर्थडे के दिन लिखा था टुडे आई टर्न 30, टुडे आई टर्न 20, तो मुझे डेट भी मिल गई। तो अननोइंगली आपने क्या किया, आपने आपका डेट ऑफ बर्थ भी रिवील कर दिया। अभी ऐसे में हमको क्या करना चाहिए, कभी भी आपका जो पासवर्ड है वो आपके घर वालों के नाम से, आपकी वाइफ के नाम से, आपके बेटे बेटी के नाम से नहीं रखना। एक सेंटेंस ले लें, जैसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ, डोंट बी अ विक्टिम। अगर मैं ये इसमें से मुझे पासवर्ड बनाना है तो मैं डी ओ लिखूंगा, डी कैपिटल में, ओ छोटा, बी कैपिटल में, ई छोटा, वी कैपिटल में, आई छोटा, और इसके साथ में मैं कोई ना कोई स्पेशल कैरेक्टर में @ डॉलर वगैरह होता है वो डालूंगा, और एक न्यूमेरिक नंबर रखूंगा जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा नहीं होगा, एक रैंडम नंबर होगा। वो आपकी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं होगा, जैसे बहुत सारे लोगों का पिन होता है 0505 1203, वो उनकी डेट ऑफ बर्थ होती है जनरली। वैसा नहीं रखेंगे, आप कोई भी एक रैंडम नंबर जो सिर्फ आपको पता हो, आप याद रख सकते हो, वो रखेंगे, और पासवर्ड उस तरीके का रखेंगे जो किसी को जल्दी अ, सूझे नहीं, जो आपको उसको क्रैक नहीं कर पाए। ये छोटी छोटी सेफ्टी टिप्स हैं, आप प्लीज ध्यान में रखिए। ये तो हर कोई बोलता है, हर बैंक बोलता है आप आपका ओटीपी और कार्ड डिटेल किसी के साथ में शेयर नहीं करें। इवन बैंक के जो एम्प्लॉयज होते हैं वो भी ये नहीं लेते हैं। आप कभी भी एटीएम मशीन पे जाते हैं, जब आप अपना कार्ड इंसर्ट करते हैं तो पहले देख लीजिए कि पूरा जहां कार्ड मशीन में इंसर्ट कर रहे हैं वो कोई दूसरा एक्स्ट्रा पार्ट तो नहीं है। ये मैं हमेशा करता हूँ, क्योंकि वहां पे एक स्किमिंग डिवाइस हो सकता है। ऐसा अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है कि स्किमिंग डिवाइस है या ऐसा कुछ हुआ है, तो पहले आप एफआईआर करें, 1930 पे कॉल करें। कोई भी है ना, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, डिटेल, बैंक डेट ऑफ बर्थ, कार्ड के पिक्चर्स। मुझे एक केस मिला था जिसमें
17 रील बनाते बनाते एक आदमी ने अपना क्रेडिट कार्ड का पूरा नंबर हर छोटे 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 पार्ट में रिवील कर दिया। वो फिर मैंने उससे कांटेक्ट करके उसको कहा कि आप हटा दीजिए, क्योंकि हम सेफ्टी चाहते हैं और ऐसा ही कोई लोग होगा कि वो मौका चाहिए। ये कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, ये हम आपके साथ शेयर करेंगे मेल पे। आप अपना मेल आईडी चाहे तो चैट में भेज सकते हैं, और हम आपको मेल पे ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो आप करेंगे तो आपका लाइफ थोड़ा स्मूथ हो सकता है, अदर देन व्हाट वी डिस्कस। कि पासवर्ड प्रोटेक्शन हमको कैसा करना चाहिए, हमारे सिस्टम का प्रोटेक्शन कैसा करना चाहिए, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया। उसके बाद इंफॉर्मेशन, अगर हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है या जो हमारी बिजनेस इंफॉर्मेशन है, उसको हम कैसे पब्लिक ना होने दें, गलत हाथों में नहीं जाने दें। उसको अगर हमको डिस्ट्रॉय करना है या डिस्पोज करना है तो हम कैसे करें। उसके अलावा कुछ जो तरीके फ्रॉडस्टर अपनाते हैं, उन तरीकों के बारे में मैंने यहाँ बताया है कि उसमें हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, ताकि आप उनको ध्यान में रखें, प्रैक्टिस करें और लोगों को बताएं। घर के खासकर जो हमारे एजेड पेरेंट्स हैं या जो हमारे अंकल आंटी हैं, उन सबको ज़रूर बताएं, क्योंकि वो सबसे पहले टारगेट होते हैं फ्रॉड फ्रॉड होने के। फिजिकल इंफॉर्मेशन अगर हमारी है कोई, तो हम उसको कैसे प्रोटेक्ट करें उसके बारे में भी मैंने इसमें 2-3 टिप्स दी हैं। उसके अलावा जब हम ये बात कर रहे हैं ना, तब तक आप ये कर लीजिए, आप अपने मोबाइल फोन को लीजिए, आपका डायलर ओपन कीजिए, आप अपना डायलर ओपन कीजिए। उसमें आप ये पहला जो मैंने लिखा है, *#62#, *#62#, ऐसा आप डायल, ये डाल के आप उसको जब क्लिक करेंगे तो वो कुछ वर्किंग दिखाएगा, और उसमें आपके पास आएगा कि आपका कोई फंक्शन, आपकी कॉल या आपके मैसेज किसी और नंबर पे फॉरवर्डेड तो नहीं है। तो ये पहला वाला आप इग्नोर कर सकते हैं जिसमें आधा नंबर है, बाकी सारे जो है वो डिसेबल्ड होना चाहिए। ये मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये देखिए मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। ये सारे जो हैं ये डिसेबल्ड होने चाहिए। अगर इसमें से कोई भी एनेबल्ड दिख रहा है आपको, तो आप ये दूसरा वाला ऑप्शन यूज करके उसको बंद कर सकते हैं। अगर एनेबल है, इसका मतलब यह है कि कोई और आपकी इंफॉर्मेशन ले रहा है। तो आप बीच बीच में प्लीज ये वाला ऑप्शन ट्राई करके आपका फोन चेक करते रहें, और प्लीज बचें। ऐसे कोई भी सिचुएशन में अपने आप को नहीं डालें जिसमें आप फाइनेंशियली रेपुटेशनली लॉस में रहें या आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब हो। अभी कई छोटे छोटे बिजनेस में ऐसा आता है कि जब बिजनेस को पेमेंट करनी होती है, तो कई बार वो मेल के बेसिस पे कर देते हैं। तो जो मैंने आपको मेल वाला एग्जांपल दिखाया था मेल आईडी का, खासकर उस समय आप ध्यान में रखिए कि जो मेल आईडी से आपको मेल आ रहा है, क्या वही मेल आईडी आपकी एक्चुअल वेंडर की आईडी है। क्योंकि अभी अभी कुछ टाइम पहले ऐसा हुआ था कि एक फार्मा कंपनी से $5 मिलियन का अमाउंट उस मेल के भरोसे उन्होंने पेमेंट कर दी, और वो लॉस हो गया। तो प्लीज अलर्ट रहिए। कुछ भी अगर आपको ऐसी कुछ क्वेरीज है, कुछ बैंकिंग के से रिलेटेड या फ्रॉड्स के रिलेटेड, या आपको क्या करना चाहिए कैसा करना चाहिए, अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, या हमें हमारे एकेडमी के मेल पे आप क्वेश्चन डालिएगा, हम आप कोशिश करेंगे कि हम सब आपको आंसर करें। और अगर किसी और को भी इस ट्रेनिंग के बारे में और जानकारी चाहिए तो वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पे ये कब अपलोड होगा ये मुझे नहीं पता, बट जब भी होगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि एटलीस्ट उनको भी थोड़ा बहुत इस बारे में ज्ञान रहे कि हम इससे कैसे बचें, और हम एक दूसरे की मदद करेंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे और सब सेफ रहेंगे। थैंक यू सो मच। Hi Parth, it is fantastic यार। ये मतलब lot of frauds that I have seen. The last one that you saw told of pharma, that I know personally which company was that as well. तो pharma company के 5 million लग गए, and unfortunately it is a listed company and they could not even tell the public that boss we've been defrauded of $5 million, and लंबी गेम हो गई थी। हालांकि it is related to our normal finance team. The email came from a regular vendor, looked like a regular email,
sent a message that please transfer this amount to my new account. And the company name was there, everything was there. So they asked for transferring a new account. The issue with the finance team is they did not reconfirm on the call because it was a US. They normally do it on the message. This happened. Anyways, fantastic. Lot of fraud cases that you have told us. Somewhere I have also heard. मैंने भी सुना हुआ है. अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं. अगर मैं इसका ये लूं कि इसका मोरल ऑफ द स्टोरी लूं, द थिंग इज बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया. जितना आप कम पोस्ट करो उतना बेटर है. जितना आप अपनी पर्सनल चीज शेयर करो उतना बेटर है, विच इज व्हाट आई एम गेटिंग द फीलर्स. किसी को क्वेश्चन कुछ है या हमारी टीम से या हमारी फैमिली से किधर से भी? Maybe I would like to ask a question. Yes, Manish, please. मुझे Yes, एक question है. हाँ विद्या जी बोलिए. Parth ji, अगर imagine somebody is already become a victim, and how do they find a recourse out of this situation? Is the bank responsible, or is the police responsible, or is there a separate cyber cell, or what is the law behind it? How do the victims get support? See, there are, first of all, when we actually see that investigate these type of cases, what we see that, most of the times victim has already shared those details or they are forced to do those transactions. So from bank's point of view, they are actually legitimate transactions. But what happens in that also now banks are very, cooperative. They have their own laws. Even regulators also say that, they have to be vigilant if customer proactively approach within the time frame. So if suppose there is a fraudulent transaction happens, what a victim has to do, first of all, they have to block their card or accounts. Second, they should approach bank, tell them immediately that this transaction has happened, so that proactively that their bank can reach to the payee bank and try to stop that money or freeze that money in the receiver's account. Third, they have to do FIR. Without complaint, there is no jurisdiction or no police will act. So once they complain, and if there is a prompt action that the victim has already informed bank, in most of the cases we have seen that we could recover that money before the fraudster actually can take it out or transfer it further. So the swift action is first block immediately your bank account, reach out to the bank whichever time it is. They have call centers, they have everything. And most of the times, if suppose there is no recovery and within the time, we know that, okay, as a bank, we know that there is no customer fault. It could be a negligence or something. Bank reimburse because there is an insurance on the deposit. Some part they can reimburse as a gesture also, but without reaching to the bank will not cooperate because for them customer has initiated. And third, police or law enforcement officer or anybody, they will only act when there is a formal complaint. So these three actions they have to do immediately the moment they know. And first of all, anywhere in the world, no bank will give you this kind of information saying that, do it now. There is nothing or less do it now when it comes to bank, when it comes to KYC, know your customer. Even if they have to get any document from you, they will give you a proper time, minimum 24, sometimes 48, 72 hours, but they will never say do it now. And top of that, they will not call you on odd times. These things normally happens on odd times where people are very busy, either they are traveling or they know, okay, this time they will not be able to do something much, bank will be closed or they are rushing somewhere and all. They will find out that time and then they will post that. So these three actions they can take. Yeah, thank you. I think the information has been so useful and so timely that all of us badly needed it. I'm sure we will circulate it extensively so that more people can benefit out of this. Yes, even a normal fraud which happens nowadays is of UPI in India. So UPI transaction, they will say that, madam, आपको payment करना है, ये QR है. But
always whenever you are scanning that QR, see who is the recipient, type, see that amount which is given in the QR is matching with your bill, and then only will you pay. Most of the times wrong billing can lead you to pay excess, and then you will lose that money. Hmm. If Right. anybody has more question, Is lines unmuted? Then I think people, if they want to ask. okay. Yeah. Anybody has a question, either you could type in the chat box or you could unmute yourself and ask the question. I'm sure Parthi will be more than happy to answer them. I think somebody got it. Okay. And the sad part is, the fraudsters actually study so extensively and identify people who are most vulnerable. And then they catch hold of such people, and then, the huge amount of fraud happens. Most of the times when we investigate, what we find out that how that information went to the fraudster. One, when they are hearing it from us, telling somebody else. Second, they do phishing. Phishing means they will send the same message to the world. वो फिशिंग का जैसा ही है, जो मछली आ गई उसको काटो और उसको खा लो. सो दिस इज लाइक, दैट इज कॉल्ड फिशिंग. फिर होता है सिलेक्ट. हाँ, सिलेक्टिव में ये होता है जिसका ईमेल आईडी मिल गया, जिसमें डेट ऑफ बर्थ है. जैसे मैंने आपको बताया एक केस था जिसमें 17 रील में उसने पूरा कार्ड नंबर दे दिया. My अगर God. मैं फ्रॉडस्टर होता तो मैं आसानी से यूएसडी का ट्रांजैक्शन करता, उसको ओटीपी भी नहीं आता Hmm. पैसा. बट ये सारी चीजें छोटी छोटी है, ये लोग ध्यान नहीं देते हैं या लोगों से मिस हो जाती है. ऑफिस एनवायरनमेंट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लैपटॉप ओपन करके चले जाते हैं. लैपटॉप में आपकी ऑफिस की इंफॉर्मेशन है, ये प्रोप्राइटरी, ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है. आप जब भी Right. अपना वर्क स्टेशन छोड़े, उसको लॉक करके फिर उठे. ये कोई भी शोल्डर सर्फिंग कर रहा है, आप कुछ पासवर्ड डाल रहे हो और कोई पीछे से देख रहा है, तो आप 2 मिनट तक रुक जाइए, उसकी नज़र उस तरफ हो जाए फिर डालिए, या उसको पूछिए क्या काम है, तब तक आप पासवर्ड मत डालिए. ये सारी चीज़ें छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत काम आती है. और अपने पासवर्ड कहीं लिख के नहीं रखिए, ये बेसिक है. आप अपने जनरली ऐसा होता है, हमारे पेरेंट्स हैं या जो ऐसे लोग हैं जिनको याद नहीं रहता, या वो पासवर्ड लिख के रखते हैं, और वो लिखते भी हैं कि पिन है. जनरली फोन पे ही लिखते हैं कार्ड नंबर HDFC पिन. तो जब आपका मोबाइल जाएगा तो पिन भी जाएगा, पिन जाएगा तो सब कुछ जाएगा. तो आप ऐसे लिख के मत रखिए, आप ऐसा नंबर चूज कीजिए जो आपको पता हो. थोड़े टिप्स मैं आपको दे सकता हूँ. जैसे आपका स्कूल का पहला दिन कब था, या आपके बेटे का पहला स्कूल का दिन कब था. जनरली ये कोई नहीं सोचेगा. वो सोचेगा Correct. कि आपके बेटे का डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये वो सोच सकता है. या फिर कई बार ऐसा होता है, जैसे आपने हमारे यहाँ इंडिया में जैसे एक हवाला कई लोग बोलते हैं, बट उसमें वो एक नोट का नंबर जो होता है वो हमेशा उनके जेब में रहता है. उसके 4 डिजिट ले लिए, उसके 6 डिजिट ले लिए, वो पिन बन गया. तो ऐसे कुछ कुछ टिप्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं आगे. Hmm. पार्थ भाई, क्या ऐसा है कि एंड्रॉइड iOS इज मोर सेफर देन एंड्रॉइड? हाँ, कई मामलों में iOS बहुत सेफ है, क्योंकि iOS का जो सिस्टम है, या जो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम बोल सकते हैं, वो एक बहुत सेफ इन्वायरमेंट में होता है और क्रैक होना काफी मुश्किल है. एंड्रॉइड के इसमें इट्स अ गूगल बेस्ड, बहुत सारे वल्नरेबिलिटीज हो सकती है, और उसमें काफी सारी जो एप्स बनती हैं वो टारगेट मास ऑडियंस को करने के लिए होती है. तो कई बार अ, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि प्राइवेसी ठीक से नहीं है उसमें, या फिर वो ये ठीक से क्या बोल सकते हैं, पैचेस ठीक से नहीं है. तो कई लोगों को जब हम ऐप कोई डाउनलोड करते हैं अननोन सोर्स से, वहां से बैकडोर एंट्री मिल जाती है हमारे फोन तक. ये वनरेबिलिटीज बहुत ज़्यादा होती है एंड्रॉयड में. स्टैटिकली तो मुझे एग्जैक्टली डेटा नहीं पता, बट जितने हमने केसेस देखे हैं, दे आर मेजरली ऑन एंड्रॉयड साइड. Hmm. Aji, एक और question, if you don't mind. Apart from these हाँ जी. technological challenges that we face from the devices, either phone or laptops or tabs and stuff like that, many of the frauds happen
by psychologically hacking into somebody's mind, emotional, challenges they throw onto people, and then get them yielded. उनको ऐसा हावी बना देते हैं psychologically कि emotional चीजें बता बता के उनको. I have seen somebody whom they recognize that they gave that person a money who was a fraudster, मगर उसके बाद भी बार बार किया है. I wondered, first time तो किसी को भी हो सकता है, but that individual has done repeatedly to the same person and again and got a huge amount of fraud done. And ये कैसे Correct. हो सकता है? And how can people avoid? What can you suggest to those people not to, how can they develop their mental capacity? See, first of all, they have to start talking to people. Whenever there is something happening, even if there is a fraud, suppose there is a fraud with me, I lost 10,000 rupees. I should not be feeling ashamed by to discuss with my friend, my partner, my wife, or whoever is my financial advisor or whoever. कि ऐसा हो गया. Now what? People, most of the people, what they do when this happens, they go into shame and they don't know how to come out of it. So till the time they figure out कि मुझे उसमें बाहर कैसे आना है, तब तक वो उसी में ही रहते हैं and they keep on transferring money. In fact, it's very shocking news. I will share. One of the very senior banker we had, and quite senior, but they never saw the digital era of the banking. She got defrauded with some 60 lakhs, and the same drug, in the same drug kind of a thing, being in a bank. So I can imagine what normal general people must be thinking or how they must be feeling. Correct. So it's the more the awareness we spread, the more cases people discuss, we know how to handle that. Whenever there is a fraud, आप उसको बहुत सारे लोग 5-10 हजार के या 500-700 रुपए के फ्रॉड को चले जाने देते हैं. मत कीजिए. कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट बड़े स्तर पे बहुत लोगों को हो रहा है. तो जाइए, गो एंड एटलीस्ट लॉन्च सम कंप्लेंट. If you रिपोर्ट don't want करना to, चाहिए ताकि दूसरे लोग एटलीस्ट बच सके उससे. यस, वो नंबर जो उसमें साइबर सेल में आएगा, एटलीस्ट वो नंबर ट्रैकिंग पे जाएगा. अभी Correct. हमारे जो साइबर सेल के हेड जो है यहाँ पे मुंबई में, वी हैव अराउंड 18 or 19 cyber cell centers in Mumbai itself. So they have increased that capacity in such a way, but if people will not come forward to report, there will be no pattern. There will be no pattern to chase. So if there is no pattern, then what police can do? Yes, करेक्ट. I रजिस्टर ही नहीं understand. करेंगे तो क्या कर सकते हैं. एंड ये I टैबू understand they निकालना are. चाहिए कि लोगों में टैबू निकालना चाहिए कि ये कोई somebody became a विक्टिम को विक्टिमाइज नहीं करना चाहिए. आगे जाके उनको हाँ, उसमें हंसना नहीं चाहिए. हाँ, वो नहीं करना चाहिए. आपने देखा डॉक्टर्स हैं, आईटी इंजीनियर्स हैं, आईटी इंजीनियर हु इज ऑलरेडी इनटू आईटी, डॉक्टर्स हैं इतने पढ़े लिखे, दे आर बिकमिंग विक्टिम्स. नॉर्मल पब्लिक के लिए ये सोच पाना, आई कैन अंडरस्टैंड कि उनका एक लिमिटेड नॉलेज हो सकता है, बट सेफ्टी भी हमारे ही हाथ में. पर्सनल इंफॉर्मेशन बोलने से पहले, शेयर करने से पहले 2 बार सोचिए, किसी को पूछिए. नहीं समझ में आता है, ऑनलाइन जाके देखिए, चेक कीजिए वो ईमेल एड्रेस करेक्ट है कि नहीं, चेक कीजिए आपने वो एक्ट किया है कि नहीं, लीगल एडवाइस लीजिए, बट प्लीज विक्टिम मत बनिए. आप शेयर कीजिए. Okay, thank you everybody. I think Vidyaji, we can close it. Thank you so much, Parth. Sure. Thank you. Parthji, before we end the session, from the entire team of Simplify MVT Academy, even though we are a medical fraternity, we are very grateful that you gave us this extensive information, and we really look forward to receive the do's and don'ts that you promised to us so that we can circulate to every member who attended today, because I'm sure that will be a handy tips for everybody. And I think it should not be just a one standalone session. No. This kind of frauds are happening, and I think the fraudsters are also becoming innovative in terms of coming up with some Yes. new
every time we hear in the news that some new things are happening. So I request you to please let's continue to do this kind of sessions once in a while. Even a short snippets about the red flags that you mentioned. I think those were very critical. So on behalf of the entire team, I would like to express my sincere gratitude. And you have made us much more empowered in terms of protecting ourselves. And we will spread this news across to more members of the community. Thank you very much. Thank you, viewers, and see you all soon during our next session. Thank you and bye for Thank you. now. Thank you.